الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ اطمینان نصیب کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے ان لوگوں کے دلوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اس دور میں ہر شخص، ہر آدمی مضطرب، بے چین، پریشان نظر آئے گا۔ جسے دیکھیں اسے روزگار کی، عزیز و اقارب کی اور دوست و احباب کی اور حالات کی شکایت کرتا ہوا دیکھیں گے۔ کسی کو سکون اور راحت حاصل نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ نہ جمہوریت ہے، نہ حقوق ہیں، نہ معاشی مسائل ہیں، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ دل کے سکون اور دل کے اطمینان کا ہے۔ حالانکہ آج کے انسان کو راحت اور آسائش اور وسائل اتنے زیادہ ملے ہیں کہ جو آج سے جو لوگ پہلے گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ان کو اتنے وسائل میسر نہیں تھے، ان کو اتنی آسانیاں میسر نہیں تھی۔ ان کے پاس، بیچاروں کے پاس تو پیسہ بھی نہیں تھا، کوئی نہیں ان کے پاس اتنی دولت تھی، نہ ہی کوئی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی، نہ بنگلے بنے ہوئے تھے، نہ لوگوں کے پاس کاریں تھی، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی، اور لوگ جو انہی میں گزارا کرتے تھے، سائیکل لوگ چلا کر گزارا کرتے تھے، کام کرتے تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس، کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھی، لیکن ان کے پاس سکون کی دولت تھی۔ آج سکون نہیں ہے، ہر چیز آدمی کوشش کرتا ہے یہ خرید لوں، یہ لے لوں، یہ لے لوں، یہ بنا لوں، یہ کر لوں، اور سکون مل جائے، لیکن سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ نے جو بات بتائی اس سے غفلت کا مظاہرہ ہے۔ آج کل تو سفر بھی
जो कई दिनों का सफर है बल्कि महीनों का सफर है वो घंटों में तय हो जाता है। चंद घंटों में लोग एकदम कराची जहाज पर बैठकर पहुंच जाते हैं, कुछ घंटों में लोग सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। तो वो हालात नहीं जो पहले हालात थे, आसाइश है, सहूलत है, सब कुछ है। तो ना ही उनके पास आजकल के लिहाज से बिजली थी, ना ही उनके पास एयर कंडीशन थे, ना ही उनके पास नरम गदीले थे, लेकिन सुकून था। और आज सुकून रुखसत हो चुका है। हमारे आबा व अजदाद पुरसकून जिंदगी गुजार कर चले गए, तो हम लोग जो है राहत के तमाम असबाब के बावजूद मुस्तरिब हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, किसी तरह भी सुकून व इत्मीनान मुयस्सर नहीं। बल्कि सूरत हाल तो कुछ ऐसी हो गई है कि जिन लोगों को ज्यादा आसाइशें मुयस्सर हैं वो ज्यादा परेशान हैं, उनको बॉडीगार्ड भी रखने पड़ते हैं कि सुकून मिले, आराम के साथ सो जाए, चोर डाकू ना कहीं आ जाए। इसलिए अपनी जान को भी, बात की जान को भी खतरा है, उन्होंने अपने साथ भी बॉडीगार्ड रखे हुए होते हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, कि भाई कोई हमला ना कर दे, कोई फायर ना खोल दे। क्या वजह है? बेसुकूनी है, डर है, खौफ है। लेकिन पहले लोग भी तो थे, उनके पास तो एक चीजें होती नहीं थी, ना बंदूक होती थी, ना पिस्तौल होती थी, आराम सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। तो चनांचे मुज़रिब और बेकरार इंसान ने दिल का सुकून हासिल करने के लिए बेशुमार गलत रास्ते इख्तियार किए, लेकिन उसे फिर भी सुकून ना मिल सका। रास्ते बड़े इख्तियार किए। किसी ने सोचा कि राहत और सुकून इक़्तिदार में है, लेकिन इक़्तिदार हासिल करके भी उसको सुकून मुयस्सर नहीं आया। चाहे वो हमारे इस वक्त के हुक्मरान हो या पहले वक्त के जो पाकिस्तान बनने के बाद के या उससे भी पहले के जो लोग हुक्मरान हो गुजरे हैं अंग्रेज के वक्त के, उनको अगर समझें कि भाई उनको सुकून या इत्मीनान मुयस्सर हो गया था, इक़्तिदार मिल गया, ठीक है। इक़्तिदार फिरौन के पास था लेकिन सुकून फिरौन के पास नहीं था। इक़्तिदार नमरूद के पास था लेकिन सुकून नमरूद के पास नहीं था। जितने भी बड़े बड़े आए हैं इक़्तिदार वाले, इक़्तिदार में सुकून हासिल करने के लिए इक़्तिदार की कोशिश की, इक़्तिदार मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। आप अमेरिका से पूछें, उस सुकून को भी सुकून मुयस्सर नहीं, जो बाइडेन को भी सुकून मुयस्सर नहीं, पूरी दुनिया पर बेशक हुकूमत करे, सुकून की दौलत नहीं। ये वो दौलत है जो अल्लाह ताला चाहे तो एक झोंपड़ी वाले को नसीब कर दे, जिसकी झोंपड़ी है, झोंपड़ी में आराम के साथ अगर वो खाना खाकर पानी पीकर आराम के साथ सो जाता है, सुकून की नींद उसको आ जाती है, डॉक्टर से गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो समझ लो कि वो उन लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार रहा है जो लोग बेसुकूनी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन असल जो आपको कुरान मजीद ने बात बताई, वो बताया अला इन्ना बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। हमें अपना जायजा भी लेना चाहिए, अपना मुहासबा भी करना चाहिए। इंसान के दिल के अंदर शैतान विसवसे डालता है, ख्यालात को बरकता करने की कोशिश करता है, ये ख्यालात पैदा करने की कोशिश करता है कि ये काम करो दिखावा रियाकारी के लिए लोगों के अंदर, ताकि तुम मशहूर हो जाओ कि बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा खुदा खौफ है। इस तरह के ख्यालात की जो नेकियां होंगी वो भी किसी काम की नहीं होगी, उनसे भी सुकून मुयस्सर नहीं होगा। सुकून उस नेकी से मुयस्सर होगा, सुकून उस अल्लाह के जिक्र से मुयस्सर होगा जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होगा, जो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए होगा। किसी आदमी की कोई दाद, कोई शाबाश, कोई किसी का दिखावा या करीब बनने में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा जो है पेश नजर होगी, तो फिर उसको सुकून मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि अला इन्ना बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो लोगों ने समझा कि इक़्तिदार जो है इसमें शायद मुतकलुन अनान बादशाह बड़े बड़े रहे हैं और बड़ा अरसा हुकूमत की है। अब्दुर्रहमान उमवी जो अजमीर में 50 बरस तक मुतलकुल अनान बादशाह रहा, 50 साल तक, लेकिन हुकूमत तो करता रहा। जब दुनिया से वो रुखसत हुआ तो लोगों ने सुना वो कह रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 14 दिन सुकून के देखे हैं, सिर्फ 50 साल हुकूमत की है, कितने दिन सुकून के देखे अपनी जिंदगी में। मरते वक्त खुद बात कर रहा है, खुद बता रहा है कि 14 दिन सिर्फ मैंने सुकून के देखे हैं, मरते वक्त ये बात कर रहा है। इसका मतलब ये कि 50 साल वो बेसुकूनी की हालत में गुजारता रहा।
जो उसको इक़्तिदार मिला हुआ था, वो बादशाह बना हुआ था। कोई समझता है कि सुकून दौलत की कसरत से मिलता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े जागीरदार, उनका हाल ये है कि उन्हें कारोबारी और दूसरी परेशानियों की वजह से रातों को नींद ही नहीं आती, रातों को नींद नहीं आती, और ख्वाब और गोलियां खाए बगैर वो सो नहीं सकते। और फिर इसी तरह यूनान के करोड़पति ताज और स्टाइल और नासिस की बेटी क्रिस्टीना अपने बाप की वारिस और यूनान की सत्य जहाजरानी की मलका है, मगर इस सारी दौलत और के बावजूद उसको भी दिल का सुकून मुयस्सर नहीं होगा, वो दिल का सुकून मुयस्सर नहीं है, इतनी दौलत होने के बावजूद। इसलिए सबसे बड़ी दौलत क्या हुई? दिल का सुकून। जिसके पास ये दौलत मौजूद है वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करे कि उसके पास सुकून कल्ब है। सुकून कल्ब ना हो तो बेशक सब कुछ हो, लेकिन आदमी सुकून और इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजार सकता। अब उसकी क्या कैफियत है जो वो मलका है, उसकी बेटी ओनासिस की क्रिस्टीना, वो मारी मारी फिर रही है, और मारी मारी फिरती है। उसने फिर कई शादियां की हैं कि शायद मुझे कोई सुकून मैसर आ जाए, मगर फिर भी सुकून नहीं मिल सका कि शायद मैं शादी करूं किसी के साथ, हो सकता है उसकी किस्मत कोई बेहतर हो, मेरी किस्मत अगर गलत, उसकी वजह से मुझे सुकून मैसर आ जाए, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिल सका। और किसी का ख्याल है कि इंसान की जो जिनसी ख्वाहिशात हैं पूरी हो जाए तो उसको सुकून मिल जाता है, ये भी गलत बात है। इस तरह सुकून मैसर नहीं होता। यूरोप में जिनसी ख्वाहिशात के लिए आम ज़ना हो रहा है, और ज़नाकारी और लवानियत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, और बाहरी रज़ामंदी के साथ जब चाहे जहां चाहे जिससे चाहे ज़ना हो सकता है। बीवियों का आपस में तबादला हो सकता है, औरतें किराए पर मिल जाती हैं। इंडियाना स्टेट जो है इसके अंदर एक शहर आबाद है जिसमें छोटे बड़े मर्द औरतें नंगे रहते हैं, सब नंगे रहते हैं, लेकिन इतनी आज़ादी के बावजूद कि वो सारे नंगे रहते हैं उस जगह जो वो शहर आबाद है नंगों का, इसके बावजूद उनको भी सुकून मुयस्सर नहीं है। तो सुकून जो है ये अल्लाह के जिक्र में है, सुकून जो अल्लाह की याद में है। फिर इसके बावजूद इस तरह का ये आलम है कि अमेरिका में हर 3 मिनट के बाद एक आदमी कत्ल होता है, और अमेरिका में हर 13 सेकंड के बाद एक ज़ना बिल जबर होता है, और अमेरिका में 81 सेकंड में कोई जबरदस्त डाका पड़ता है। तो इतनी बड़ी खराबियां जहां माशरे के अंदर हो वहां पर सुकून हो सकता है? उस माशरे के अंदर सुकून नहीं हो सकता। सुकून होता है अल्लाह के जिक्र से, सुकून होता है अल्लाह की याद से, सुकून आता है अल्लाह के दीन की निज़ाम को कायम करने से। इत्मीनान सुकून की नींद लोग सोते हैं, और फिर किसी की सोच ये है कि मंशियात के इस्तेमाल से सुकून मिल जाएगा, नशा कर लेंगे, सुकून के साथ सो जाएंगे, हीरोइन पी ली, चर्स पी ली, शराब पी ली, या कोई और इस तरह करके कर लिया। तो मंशियात ने कितने घरानों को तबाह किया है, कितने घरानों को बर्बाद कर दिया है, खानदान उजड़ गए हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, और लोगों की लाशें इधर उधर पड़ी होती है जो नशा करने वाली है। फिर जो वो कहते हैं जी फलां जगह कोई नशेड़ी था वो मर गया है, उसका पता ही नहीं कोई वारिस उसका है कि नहीं है, उस मारने वाला भी है कि नहीं है। अखबारों में इश्तिहार आते हैं, टीवी पर लोग उसका बताते हैं, तो ये सारे बताते हैं कि भाई इसका कोई वारिस है कि नहीं है। बाद जो वाला वारिस दफन कर दिए जाते हैं। तो ये क्या हुआ? सुकून के लिए उसने ये किया था कि मैं नशा करूंगा, मुझे सुकून आ जाएगा, मुझे इत्मीनान आ जाएगा, लेकिन फिर भी इत्मीनान नसीब नहीं हुआ। इसी तरह करके लाखों इंसान जो है मौत के घाट में उतर जाते हैं ये नशे की वजह से, लेकिन उनको सुकून मुयस्सर नहीं आता। ये तमाम ज़राए इंसान को हकीकी सुकून नहीं दे सके, लेकिन इंसान जो है वो हकीकी सुकून की तलाश में है। लेकिन रब क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है कि उधर से पुकार के आती है, मेरे बंदे तूने दौलत में सुकून तलाश करने की कोशिश की, दौलत के अंबार लगा दिए, लेकिन तुझे सुकून नहीं मिल सका। और मेरे बंदे तूने वज़ारतें और बादशाहती हासिल की कि तुझे सुकून मिल जाए, लेकिन तुझे फिर भी सुकून नहीं मिल सका। तूने रक्स और सरूद की महफिलें जमा कर, गाने बजाने की महफिलें जमा कर, तूने ये समझा कि तुझे सुकून मिल जाएगा, फिर भी तुझे सुकून नहीं मिल सका। और तूने ये समझा कि रियादी और फाशी और बदकारी की इंतहा कर दी जाए तो तुझे सुकून मिल जाए, फिर भी तुझे सुकून नहीं मिल सका। और तूने जुए और सट्टेबाजी का बाजार गर्म किया कि तुझे सुकून मिल सके,
लगे लेकिन फिर भी तुझे सुकून नहीं मिल सका। तूने सैकड़ों बेना शराब हीरो चर्च और भांग का इस्तेमाल करके देख लिया लेकिन फिर भी तुझे सुकून नहीं मिल सका। तूने नित नए फैशन इख्तियार किए कि तुझे सुकून मिल जाए लेकिन तुझे फिर भी सुकून नहीं मिल सका। तूने कोह पैमाई की कि तुझे सुकून मिल जाए लेकिन फिर भी तुझे सुकून नहीं मिल सका। और इसी तरह तूने खेलों में कमाल हासिल कर लिया कि तुझे इस वजह से सुकून मिल जाए, तुझे इस वजह से भी सुकून नहीं मिल सका। तूने समुद्रों और सहराओं को छान मारा, जगह जगह जाकर डेरे लगाए, जगह जगह जाकर सैर की, सियाहत की, लेकिन तुझे फिर भी सुकून मुयस्सर नहीं आ सका। फिर तूने चांद और सितारों तक जा पहुंचने की कोशिश की, बल्कि जा पहुंचा लेकिन फिर भी तुझे सुकून तुझे मुयस्सर नहीं आ सका, तुझे सुकून नहीं मिल सका। तूने साइंसी उलूम से हैरत अंगेज मशीनें इजाद की लेकिन फिर भी तुझे सुकून मुयस्सर नहीं आ सका। और तूने तरह तरह के काम किए, ऐसे ऐसे काम किए जो पहले लोगों ने नहीं किए थे, लेकिन उनके पास तो सुकून की दौलत थी, वो तो सुकून कल्ब की दौलत से मारा मार थे, लेकिन तेरे पास सुकून कल्ब की दौलत फिर भी नहीं है। भूले भटके मुसाफिर, अल्लाह फरमाते हैं मेरे दरवाजे पर आ, मेरे दरवाजे पर आ, और मेरे दरवाजे पर आकर मेरे सामने अपनी जरूरियात रख। मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरी वो सारी जरूरियात को पूरा करूंगा और मैं तेरा मालिक हूँ। तुझे मैं बताऊंगा कि सुकून का रास्ता कौन सा रास्ता है और फिर तुझे वो चीजें बताऊंगा जिनके जरिए तुझे सुकून में असर आ सकता है। और जुल्म जहूल इंसान, तूने वो रास्ता इख्तियार किया ही नहीं है जो रास्ता सुकून वाला रास्ता है, और अंगारों पर बैठा है तू और तू चाहता है कि तुझे सुकून मिल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से भी सुकून मिलता है, अल्लाह की इबादत करने से भी सुकून मिलता है, अल्लाह के बंदों की खबरगिरी करने से, उनकी मदद करने से भी सुकून मुयस्सर आ जाता है। फिर इसी तरह करके गंदगी के ढेर पर बैठकर जाता है, कहता है कि मुझे खुशबू नहीं आ रही। तुझे खुशबू कैसे आए? तो गंदगी के ढेर पर बैठा हुआ है और फिर कांटों पर बिस्तर बिछाया हुआ है और चाहता है कि मुझे चुभन ना हो। चुभन कैसे ना हो जब बिस्तर ही तेरा कांटों पर बिछा हुआ है और तेल छिड़क कर बस तिगड़ी चलाता है और कहता है कि आग ना लगे। आग कैसे ना लगे? आग तो लगेगी। फिर इसी तरह करके अपने खाल को मालिक को तूने बुला रखा है और उसको बुलाकर तू ये समझता है कि तुझे सुकून मिल जाएगा, कतई सुकून नहीं मिलेगा। सुकून मिलेगा तो उसी के दरवाजे पर आकर, उसी की चौखट पर आकर सजदा रेज़ होने से सुकून मिलेगा। तो ऐ खालिक मालिक, हम तेरे सामने ही अपनी अर्ज पेश करते हैं कि अल्लाह हमें सुकून की दौलत नसीब फरमा, क्योंकि इससे हम महरूम हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे से ये बात कहते हैं कि पागल बंदे, सब कुछ समझने के बावजूद तुझे नसीमो ज़र ने जो जना छान था तेरे पास, तुझे ना वो सुकून दे सकी, ना तख्तो ताज तेरे इस इस्तराम को, तेरी बेसुकूनी को खत्म कर सके, और ना रक्स और सुजूद और म्यूजिक की महफिलें तेरे सुकून को खत्म कर सकी, ना नाच गाने की महफिलें तेरे सुकून को खत्म कर सकी। तेरे सुकून तुझे सुकून ना दे सकी, तेरे सुकून कलम ना दे सकी, और ना ही जो ज़नाकारी और फहाशी के अड्डे हैं वो तुझे मुतमईन कर सके। तू किसी जगह से मुतमईन ना हुआ, तूने किसी जगह से सुकून हासिल ना किया, हर जगह से तुझे बेचैनी मिली, मंशियात का भी इस्तेमाल किया, बेसुकूनी ही मिली। और इसी तरह करके तरह तरह के जो हीले बहाने करता रहा कि मुझे सुकून मुयस्सर आ जाए, लेकिन सुकून तुझे मुयस्सर नहीं आया। मैं तुझे बताता हूँ सुकून किधर है। फरमाता है अल्लाह कि अला इन्ना बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है। हम खुद गौर करें, हम खुद सोचें, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। फर्ज नमाज तो ठीक है, हम अदा करते हैं, फर्ज नमाज अदा कर लेने काफी तो नहीं है, इसके अलावा भी अल्लाह का जिक्र है, नमाज भी अल्लाह का जिक्र है। लेकिन नमाज के अलावा कुरान की तिलावत बाकायदगी के साथ कौन कौन करता है, और आदो वज़ाइफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से मैं है, वो कौन कौन करता है? कोई भी नहीं। हमारे पास वक्त ही नहीं, इसलिए कि हम बेचैन है, मुज़तरिब है, लेकिन उस तरफ आने के लिए तैयार भी नहीं जिस जगह से हमारी बेचैनी दूर हो, हमारा इज़्तिराब दूर हो और हमें सुकून और इत्मीनान मुयस्सर हो। और ये जो चीज़ है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें दिल का सुकून और सच्ची खुशी मेरे जिक्र के बगैर हासिल नहीं हो सकती। अगर हासिल होगी तो मेरे जिक्र से हासिल होगी। अल्लाह ने खुद फरमाया फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो खालिक़ कायनात जब करे तो उस वक्त इंसान को सुकून मुयस्सर नहीं आएगा। फरमाया वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून, मेरा कसरत के साथ जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।
یہ جہاں فرمایا کہ الا ان بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کرو تمہیں اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ تو آج کا میرا موضوع سکون قلب ہے۔ سکون قلب نہیں تو کچھ بھی نہیں، دنیا کی ساری دولت پاس ہو، سکون قلب نہ ہو تو آدمی کو کچھ بھی میسر نہیں۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آئے، اس میں دنیا کا بھی سکون ہے، آخرت کا بھی سکون ہے، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ لیکن جو بھی ذکر کرے، جو بھی نماز پڑھے، جو بھی قرآن کی تلاوت کرے، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کرے، اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے کرے، پھر وہ جا کر اس کو سکون بھی دے گی، پھر وہ جا کر اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔